ان کی ایک تشریح تو وہ ہے جو خود صوفیاء بیان فرماتے ہیں، ایک تشریح وہ ہے جو ان الفاظ کے معنی پر گفتگو کرنے والے بیان کرتے ہیں، اور ایک رب کے بندوں کی تعریف وہ ہے جو رب نے خود بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا دو چیزیں، دو صورتیں اللہ نے اپنے بندوں کی قرآن مجید میں بیان فرمائی، ایک ان کا دن بیان کیا، ان کی زندگی بیان کی، ان کی صبحیں بیان کی، اور ایک ان کی راتیں بیان کی۔ ان کا دن کس طرح کا ہوتا ہے، وقت کس طرح گزارتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے کے گدا ہو جاتے ہیں وہ دن کیسے گزارتے ہیں۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں بلا کا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں۔ رب کا بندہ مضطرب نہیں ہوتا، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر۔ چلیں مجھے فٹافٹ بات یاد آ گئی، داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا تھا، سب لوگ پریشان تھے، ایک درویش تھیلا لے کے بازار سے سودا لینے آیا بھی بڑا ٹہلتا سودا بھی خوش خریدا، واپس بھی نکلا تو ہنستے ہوئے۔ تو اب سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ ہنسے تو ذرا عجیب لگتا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہے جب قحط پڑا ہوا ہے، سب لوگ پریشان ہیں اور تو اتنا ٹہلتا مچلتا آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس نے اپنے بھڑولے گندم کے ٹائم سے بھر دیے تھے، ہمارے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہے، لہذا ہمیں فکر کوئی نہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں یہ جو کہا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندوں کو غم اور خوف کوئی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے انہیں پتہ ہے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، مالک کے بھرے ہوئے خزانے ہیں، وہ جب چاہے گا اپنے بندوں کے لیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب دے گا بے حساب عطا کر دے گا، وہاں سے دے گا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کا دن اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ الجھتے نہیں، جاہلوں سے بحثیں نہیں کرتے، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ان سے بحث کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ان کا دن یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں عاجزی ہے۔ میں اور آپ بے چینیاں، بے قراریاں، جلد بازیاں، الجھے ہوئے، بار بار صبح کچھ سوچتے ہیں، دوپہر پروگرام اور بنا لیتے ہیں، شام کو ارادہ پھر بدل جاتا ہے۔ رب کے بندے یقین کامل والے، ان کے عقیدے پختہ، نظریات پر پورے طور پر قائم۔ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو نا مطمئن کرتی ہیں، ایک اگر اس کے پاس جائز پیسہ ہو اور وسیع ہو تو بندہ مطمئن رہتا ہے، اور دوسرا اگر اس کے پاس علم ہو تو علم بندے میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر لوگ اللہ والے ہو جاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یقین والوں کے پاس بیٹھتے تھے تو انہیں یقین نصیب ہوتا تھا۔ ہاں ہم بیٹھتے بے یقین۔ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آ گیا تو اس نے آ کے کہا حضور لوگ دنگ بڑا کرتے ہیں، رشتہ دار بھی دوست بھی، یہ سارے کہتے ہیں آج کل اپنے مشائخ، تو کوئی نسخہ بتائیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، محبت کرنی شروع کر دے۔ تو اس نے بھی وہی کہا جو آپ صاحب اور میں کہتے ہیں نا، اس نے کہا جی میں تو بڑی کرتا ہوں، پر سامنے والے اس کا جواب ٹھیک۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرائے۔ اللہ والوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ اپنی رائے بار بار بدلتے، بولیے رائے بار بار بدلتے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ کہا میں محبت کرتا ہوں پر وہ پھر بھی مجھے تنگ کرتے ہیں، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے، کرنا پیار ہی ہے، اگر ایک دو خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں بڑھا دینا، محبت میں اضافہ کر دینا، عقیدت میں اضافہ۔ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آئے، آپ جہاں ہو نا پھر وہاں تھوڑا سا بے یقین باتیں کرتے ہیں لوگ، کمزور باتیں کرتے ہیں، ٹھہراؤ نہیں، بردباری نہیں، علم نہیں۔ رب کے بندوں میں بلا کی بردباری۔ ہمارے ہاں جو جس کی نئی بات سنتے ہیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جس نے نئی کہانی چھیڑ دی ہم بھی اس کے جن نے لایا گلی اودنا نہیں چلی۔ او بھائی تو تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کر، تیرا اپنا ایک نظریہ ہے، تیرا اپنا ایک مزاج ہے۔ وہ جی فلانے نے نئی تحقیق کی ہے، حضرت مجدد الفسانی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت ہے نہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میں علم پڑھنے کی
मुमानत नहीं कर रहा, मैं तहकीक की मैं कहता हूँ अकायद के बाब में जो उन्होंने लिख दिया है वो काफी और शाफी है हमारे लिए। तहकीक के नाम पर तकरीब करने की जरूरत नहीं है। भाई आप कहीं खड़े हो, आप में बुर्दबारी हो, आप में इल्म हो, आप में तकवा हो, आपके मिजाज के अंदर खूबसूरती हो। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स ने आके कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे भाई का पेट खराब हो गया, दस्त आते हैं। हुजूर ने फरमाया शहद पिलाओ। शहद पिलाया, फिर आ गया, कहा या रसूल अल्लाह बीमारी तो कुछ बढ़ गई है। हुजूर ने फरमाया शहद पिलाओ। वो डॉक्टर हैं जो दवाइयां बदला करते हैं, वो हकीम है जो दवाइयां बदला करते हैं। ये मेरे रसूल पाक का दरवाजा है। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और आला हज़रत फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और एक दरवेश ने कहा था, भाई असी सादे बंदे हाँ, सानू तो इन्ना पता है साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। या रसूल अल्लाह दस्त बढ़ गए, फरमाया शहद पिला। फिर आ गया तीसरी दफा, हुजूर दस्त बढ़ गए, हुजूर ने फरमाया शहद पिला। उसने फिर कहा हुजूर वो तो उसके तो पेचस बढ़ गए। तो करीम महबूब फरमाने लगे तेरे भाई का पेट झूठ बोलता है, अल्लाह का रसूल सच कहता है। जा जा के उसे शहद पिला। वो कहता है शहद ही पिलाया तो अल्लाह ने शिफा अता फरमाया। आप में बुर्दबारी हो, आप में ठहराव। मेरे अजीज बड़ी जल्दी परेशान नहीं होना। अच्छा एक बात आपसे अर्ज करूं, ये जो लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं ना, इनकी फिर सुनता भी कोई नहीं, उलझते ज्यादा है ना। आप ज्यादा बोलते हैं तो लफ्जों की हुर्मत खत्म हो जाती है, जुमलों का। आप हर वक्त बातें करेंगे, मेरी तरफ देखे भाईजान, जब आप बहुत बातें करेंगे तो आपके लफ्जों की हुर्मत कायम। एक बुजुर्ग मेरे पास आए, एक दफा कहने लगे मैं बड़ा समझाना, रौला भी बड़ा पाना, पर बाल गल नहीं सुनते, पुत्र ते नूह ते बिल्कुल नहीं सुनते। तो मैंने कहा छोटा आदमी हूं, एक नुस्खा दूं? कहने लगे दे दे। मैंने कहा आज आपने घर जाना है तो शोर नहीं करना, आपने सिर्फ सलाम लेनी है, चुप करके अपने कमरे में चले जाना है। कहने लगे पीर साहब वो बड़े डांटे जे। और मैंने कहा आप जाके देखे तो सही, एक दफा आप गौर तो करें, आपको समझ आ जाएगी वो क्या बनता है कुछ। मैंने कहा एक दफा नुस्खे पे अमल कर ले, ना फर्क पड़ा तो आइंदा ना कीजिएगा। वो कहते मैं चला गया। बुजुर्ग फरमाते हैं घर जाके मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा और मैं चुप करके अपने कमरे में चला गया। वो जो बहू बड़ी आवाजें देने पे नहीं ना सुनती थी, वो सीधी मेरे कमरे में आई, कहने लगी अब्बा जी खैर है, तबीयत ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। कहने लगी वो आपको तुम पोटे वाली सेवियां ना पका दिया, बड़ा तरह नरम खिसा। मैं कहने कोई शायद थोड़ी देर हुई तो घर वाली भी आ गई, बेटियां भी आ गई, सारी खैर है। कहते मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये जो हुजूर ने फरमाया है ना, चुप कर गया वो निजात पा गया। तू शोर करता है, तू ज्यादा बोलता है, तू ज्यादा दावे करता है, तू कहता है मैंने जीत के सोना है, फकीर जीता नहीं करते। ओए जितन जितन हर कोई खेडे, तू कदे हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। तू क्या मैंने हार जाना है, मैंने हारना है। वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। अगर बेटा बात सुनते, अगर कभी जाहिल आके बहस करे भी तो हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अकल की ज़कात पता क्या है? जाहिलों से गुजारा करना। तेरे अकलमंद होने का पता ही जब चलता है जब तेरा पाला जाहिलों से पड़ता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी अक्सर इल्मी मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, फरमाते हैं जब बात हुई ना उलमा से तो कभी वो आलिम जीत गए, कभी मेरी बात की फौकियत हो गई, कभी उनकी बात मैंने मान ली, कभी उन्होंने मेरी मान ली। जब उलमा से बहस हुई तो कभी मेरा मौक़िफ़ गालिब आया, कभी उनका। लेकिन फरमाते हैं जब भी मेरी किसी जाहिल से बात हुई, जाहिल जीता है। जाहिलों से बंदा जीत सकता। अब यहाँ मियां साहब किबला बैठे हैं, दरवेश लोग बैठे हैं, मैं छोटा आदमी बात करूंगा भी तो जरा, लेकिन आपको समझाने के लिए करनी भी पड़ेगी, आपने नाराज नहीं होना। मेरी एक राय है, आप इख्तलाफ करना हुआ तो कर लीजिएगा, ना बात माननी हुई तो ना मानिएगा। मेरी राय ये है कि मियां बीवी के झगड़े में ना ज्यादा गलती मियां साहब की होती है। तुसी नाराज हो गए, मैंने पता थी तुसा हो जाना है, मैंने पहले आपसे कहा था माफ कर देना। मेरी राय ये है, और मैंने कहा था इख्तलाफ भी कर लेना, बेशक ना मानना, पर राय तो दे सकते हैं ना हम। राय ये है कि मियां बीवी के झगड़े में ज्यादा गलती, तुसी नहीं बोलना मैंने पता है, लेकिन चले मैं तो बोल रहा हूं ना, क्यों मियां साहब की गलती ज्यादा होती है? उसकी वजह यह है कि औरत बेचारी की अकल आधी है, तेरी तो पूरी है ना। तुम झगड़ा तो तूने खत्म करना था, दारगुजर तो तूने पैदा करना था। मैं ना घर में रोटी खा रहा था, कहीं सफर से आया, दूर से थका मांदा,
तो मदरसे का एक बच्चा रोता हुआ आ गया, तो घर वाले कहने लगे पता नहीं किसी उस्ताद ने कोई थप्पड़ मार दिया, पहले बच्चे की सुन ले, ज्यादा ही रो रहा है। तो मैंने बच्चे को बुलाया तो उसका वजूद कांप रहा था, तड़प रहा था। मैंने उसके सर पे हाथ रखा तो ऐसे तर तो मैं क्या पुत्र की होया है? कहने लगा भाई साहब मैंने घर फोन किया था, मेरी अम्मी और अब्बू फिर लड़ रहे हैं। कहने लगा हज़रत साहब जब वो लड़ते हैं ना तो हम चारपाइयों के नहीं, माँ बाप जब लड़ाई करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या होने लगा। तो यारो ये नफ्सियाती डिप्रेशन कौन डाल रहा है? मैं और आप अपने बच्चों पे डालते हैं। मियाँ बीवी बहस करते हैं, नतीजा निकलता है तलाक होती है माज़अल्लाह। बहस जीत गई और रिश्ता हार गया, माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजारने लग गए। वो कहता है मैंने जीतना ना, मैं तुझे हुजूर की बारगाह में ले जाऊं। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मेरे नबी पाक जब तक घर में रहते थे घर वालों का कोई ना कोई काम ही करते रहते। हुजूर तो प्यार करते थे लेकिन हम जीतना चाहते। और मेरे भाई अगर कभी कोई उलझना भी चाहे, हाँ अकीदे की कभी बात होगी तो फिर एक सिट दे पकड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने। अगर बात अकीदे की होगी फिर हम चट्टान हैं, लेकिन अगर जात की बात है फिर मेरे भाई दरगुजर, फिर प्यार, फिर इतनी। आजकल पीरों को एक और भी बड़ी मुश्किल होती है, संगियों के आपस में इख्तलाफ भी बड़े होते हैं, ये भी बड़ी मुसीबत है। अल्लाह अल्लाह सिखाने के साथ साथ हर चौथे दिन सुलह भी करानी पड़ती है, ये उससे बड़ा मसला है। ओ खुदा के बंदो कहीं तो अपने दिल में दरगुजर पैदा करो, कहीं तो माफी। आते हैं लोग जो उलझाना चाहते हैं, आते हैं, हर एक से उलझा नहीं जाता। वो मुल्ला रूमी कहते हैं गधे और घोड़े की बहस हो गई। घोड़ा कहने लगा आसमान का रंग नीला है, गधा कहने लगा काला। कई घंटे बहस होती रही, फैसला शेर के पास चला गया। शेर ने कहा बात भी घोड़े की ठीक है, रंग नीला है, पर घोड़े को उम्र कैद की सजा दी है। उसने कहा जनाब बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे। उसने कहा सजा इस बात की है कि तूने गधे से बहस शुरू कर दी है, मुझे समझ नहीं आई गधा है, तेरी अकल का मातम न करे। वाइदा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा, आप जाहिलों से बहस, आप ऐसे लोगों से। हमारे किबला एक दफा फरमाने लगे, कुछ बंदे हमें आके कहते हैं हुजूर नहीं देते, कहते हैं वो हमें मनवा पता क्यों नहीं सकते, इसलिए नहीं मनवा सकते कि हमें तो नबी पाक ने दिया है ना। तो जिसे दिया हो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे अजीज जाहिलों से बहस। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे और फकीर भी थे, इतने बड़े दरवेश थे जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज कि एक शख्स को हुजूर ने ख्वाब में मिलके कहा, उसे कह दुरूद शरीफ जितना पढ़ता है उतना ही रोज पढ़ा करे, कम ना करे, हमें उसका पढ़ना बड़ा पसंद आता। इतने मकबूल थे हुजूर की बारगाह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। और वक्त के हुक्मरान भी सड़क पे चल रहे थे। मैं ना इन दोस्तों से भी मैंने कहा कि यार इस्तकबाल से कभी हमें बचा लो ना, इस्तकबाल तो वजीरों के होते हैं, फकीरों के थोड़ी होते हैं। हाँ से सबूत ना पूछो मैथों, ए नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल पर जाने गैर न जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना आदम किसे दर मिली न टोई, एते वासफ यार ने नजर जो की थी, एते वासफ यार ने नजर जो की थी, तो फिर वासफ वासफ हो। से सबूत ना पूछो मैं, फकीर दरवेश सादे लोग, ये तो मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है आपकी मेहरबानी है। मेरे अजीज हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फकीर भी है, दरवेश भी है, बादशाह भी, लकड़ी के जूते खड़ाऊ पहने हुए फकीर बंदे थे। तो अल्लाहू 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 करते असी किसी से कुछ भी नहीं लग रहे, ना कोई साडा दर्दी। वो चुप करके ना अपने कैफ में जा रहे थे, रात का वक्त था, एक बुजुर्ग लेटे हुए थे, तो हजरत का पैर बाबा जी के पैर पे आ गया। अचानक रात का टाइम था, बाबा जी फुटपाथ पे सड़क पे सोए, पैर पे पैर आया ना, तो अचानक टक्कर हो जाए तो बंदे क्या कहते हैं, अंदर है तू, यही कहते हैं ना। तो उसने भी कहा हालान तुम लामा, क्या आप अंधे हो? पैर पे क्या किसे दिया बादशाह को। दरवेश यहाँ कोई बात करके तो देखे, यहाँ तो फकीरों के भी बड़े नाम नखरे, यहाँ तो माफी कोई नहीं, यहाँ तो प्यार लोग ढूंढते फिरते हैं, कोई जगह मिले जहाँ सर रख के सो रोए। हमारे पास तो टाइम ही नहीं। कहा आप अंधे, तो आपका पता ही तब चलता है जब ऐन मुसीबत आए कि आप में हौसला कितना है। यही तो दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने, 14 तबक दिले दे अंदर ते असा तंबू वांगू ताने। एक जगह पे कहने लगे कीती ये जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया है, मरण तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया है।
मिट गए वो लोग, मिट गए, कहा बंदे। तो ये टाइम है आपका जब आपके हौसले का पता चलता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे, नहीं बुजुर्गों मुझे नजर आता है, वो जो 7 सिपाही थे ना, ये केतली हमेशा चाय से ज्यादा गर्म होती है। उन्होंने तलवारें निकाल ली। कहा क्या हुआ? जनाब उसने आपको अंधा कहा है। फरमाया नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा। कहा है? फरमाया नहीं कहा। कहा जनाब कहा है? आप फरमाने लगे, बाबा जी तुमसे बातें कर रहे थे, मुझसे कर रहे थे? कहा जनाब बातें तो आपसे ही कर रहे थे। फरमाने लगे, उन्होंने अंधा नहीं कहा, उन्होंने तो एक सवाल पूछा है कि आप अंधे तो नहीं? तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? ओ जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। ओ भाई आपकी तबीयत के अंदर, मिजाज के अंदर उलझाव नहीं। अल्लाह का बंदा बुग़्ज़ नहीं रखता, अदावत नहीं रखता, उसका सीना साफ रहता है। वो उसकी तबीयत होती है, वो उलझाव पैदा नहीं। माफ करना तो खत्म है, 2 मिनट में माफ कर देना, 2 मिनट में माफ कर देते हैं रब के बंदे। अपनी तबीयत में वो रंग लाएं, उलझाओ नहीं। और अगर कभी कोई आ भी जाए ऐसा, वो ना हमारे मुखालिफ पता हमें क्या कहते हैं, वो हमें चिढ़ाना चाहते हैं, चिढ़ाना। वो कभी आपने देखा है देहातों में किसी बंदे को लोग छेड़ा करते थे, असल कसूर उसका नहीं होता था जो छेड़ता था, असल गलती उसकी होती थी जो चिढ़ जाता था। अगर आप चिढ़े ना तो कोई आपको चिढ़ाएगा? बोलिए। लोग कहते हैं फलाने ने मुझे गुस्सा दिलाया। भाई आप नादान है, जो आता है आपको गुस्सा दिला के चला जाता है। यही तो आपका कमाल है। यही वो हमारे बुजुर्ग थे तो किसी ने उनसे आके कहा फलाना बंदा आपके खिलाफ बातें करता है। कहने लगे नहीं, वो मसरूफ आदमी, उसको लेना टाइम ही नहीं, छोड़। उसने कहा नहीं वो करता है। तो फरमाने लगे तुझे कैसे पता है? जी मैं बड़ा देर सुन के आया। फरमाने लगे फिर सज्जन थे तुम ही ना होया, जेड़ा इन्नी देर बह के उसे सुनता रहे हैं। अगर ये यार के खिलाफ तो बंदा जुमला नहीं सुन सकता, और तू इतनी देर सुनता रहा है, इसका मतलब है कि तूने पहले मौका हाँ हाँ किया तो उसने कहानियां सुनाई। यार हमें लोग चिढ़ाते, हम चिढ़ जाते। क्यों इस्लाम ने गीबत को इतना नापसंद किया? ये नफरत पैदा करती है, अदावतें। जिनके साथ बंदे ने मिल के जीना होता है, चुगलखोर बंदे को उनसे दूर कर देते। आपका दिल कुशादा हो, तबीयत बड़ी हो, फकीर का सीना चौड़ा होता है, उसका दिल बड़ा होता है, उसका हौसला बड़ा होता है। अगर कभी कोई बड़े बड़े जालिम सफाक आ भी जाए तो अल्लाह के बंदे के सामने ठहर सकते नहीं। कोई भी आ जाए, हुजूर मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी के पास कोई भी आ जाए, कोई ननकाना साहब से चल के जाए, कांग शरीफ से चल के जाए, कोई हजरत कैलिया वाला शरीफ से चल के जाए, हजरत कर्मा वाला शरीफ से चल के जाए, बस आ जाए। जो आ गया है उसे झोली भर के अता फरमाया है, झोली भर के। कुशादा होता है फकीर का सीना, उसका दिल कुशादा होता है, उसकी रूह कुशादा। एक बहुत बड़े दरवेश थे, हजरत फखर जहां देलवी, दिल्ली में बड़ा नाम था। जब किसी बंदे की शोहरत होती है ना, प्यार लोग करते हैं, तो फिर हासिदीन पैदा होते हैं, हासिदीन। और ज्यादातर असद वो लोग करते हैं जिनकी आप बात नहीं मानते। मैं अपने दोस्तों को कहना, मैं कहना रोज, कल हम ना 4 जगह पे थे, आज भी ऐसी मसरूफियत है, यक के बाद दीगरे। अब जिसको तो टाइम दे देते हैं वो तो खुश है, वो बंदा बड़ा फकीर है। तो जिन्हों ना दइए वो कहता है कोई नखरा है। लोग गलत नहीं होते, बस जरा हमारी तबीयत के नहीं होते। हम उनके बारे में साजिशें शुरू कर देते हैं, हमारा मिजाज गड़बड़। हजरत फखर जहां देलवी बड़ा नाम, हजारों लोग जुमा पढ़ते थे, और 4 दांगे आलम में लोग प्यार करते थे। बादशाह को असद हो गया। बादशाह लोग, अमीर लोग नहीं पसंद करते कि मौलवी फकीर दरवेश हो जाए। उनका ख्याल होता है कल को मसला ना खड़ा कर दे। एक तवाइफ थी, उस तवाइफ को पैसे दिए। बस मैं बात समेटने की तरफ आ रहा हूं, आपने तवज्जो करनी है, थोड़ी तकरीर करने का कायल हूं। बादशाह ने पैसे दिए, वो बीबी बन संवर के ना हजरत साहब जुमा पढ़ के सीढ़ियां उतर रहे थे, दाएं बाएं लोगों का रश था, अकीदतमंद मिल रहे थे, तो बीबी भी दरमियान में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। कहने लगी वो रात आप मेरे कोठे पे आए थे माज़अल्लाह, तो आप मोटे सिक्के दे गए जाती दफा। मैं दुकान पे गया हूं तो गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं। सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कोई थोड़े कच्चे पक्के भी होते। ਤੁਹਾਡੀ नहीं गल करदा, पर चलो जिदी करना समझ तुसी भी जाओ। सारे पक्के, कोई थोड़े बहुत कच्चे पक्के भी होते हैं। तो कच्चे पक्के मुरीद सोचने लग गए कि जनाब वाकई बाबा जी रात को कहाँ होते हैं, ये तो कभी पूछा ही नहीं, ये रात को कहाँ होते हैं। वो ये जो लोग अदाकारी करते हैं ये भी कमाल ही करते हैं। उसने कमाल अदाकारी की, कहने लगी बाबा जी वो रात आप खोटे सिक्के दे गए, लेकिन वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे वकार वाले, आइस्तगी वाले, हजरत घबराए नहीं। जिनके साथ रब होता है वो घबराया नहीं करते, परेशान नहीं हुए। उसने कहा आप खोटे सिक्के दे गए थे। हजरत ने जेब में हाथ डाला और 3 दफा कहा बेटी, ओ मेरी बेटी,
ओ प्यारी बेटी, पुत्र तू खोटे दे जा, असली ले जा। और फरमाया बेटा दोबारा भी जरूरत पड़ी तो आ जाना, फखर जहां का दरवाजा खुला मिलेगा, तू असली ले जाना पुत्र। ये लफ्ज कह के हजरत तेजी से सीढ़ियां उतरे। थोड़ी देर तो वो बीबी चुप खड़ी रही। मैं क्या करने आई थी, और ये हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। मैं क्या करने आई थी, ये क्या नतीजा निकला। चंद सेकंड उसका वजूद सदमे में, फिर दौड़ी आई और सामने आके पैरों में बैठ गई और चीख मार के रोई। कहने लगी, ओ दरवेश तू किस कस्तूरी और संदल का बना हुआ है। मैं तवाइफ, सारा शहर मुझे गंदी नजरों से देखे, मेरे अपने भी मुझे अपना ना माने। मैं तुझे बदनाम करने आई और जिनकी बेटी थी उन्होंने भी बेटी मानना छोड़ दिया। मैं तुझे बदनाम करने आई और तूने मुझे ही बेटी बना लिया। और फिर एक और दर्द से चीख मार के उसने अपना पल्लू थामा, अपने चेहरे पे ओढ़ के कहने लगी, दिल्ली वालों अब मैं तुम्हें बताऊंगी फखर जहां की बेटी कैसी होती। आज के